Hello. Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start digital communication which are came under ETC 6 semester students. In today's lecture I will cover various topic that is DPSK, DPSK transmitter, DPSK waveform generation, DPSK receiver, advantage and drawback of DPSK. And also we are came under with your DEPSK same as modulator, demodulator and its waveform and its drawback and advantage. And also discuss the same case for your qualitative amplitude modulation with modulator and your demodulator. So, in that lecture, I will continue my that video. So, this is the basic of your DPSK. Uh, so, in what is the main difference between your simple PSK and your DPSK? In DPSK, you can use non-coherent type detection. You can say non-coherent demodulator. मतलब कि आपका DPS का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट किंग. तो DPSK के अंदर जो DPSK है वो आपका PSK से कैसे डिफरेंट है एज पर दी डीमोडुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो जो डीपीएस का डीमोडुलेटर होगा उसमें हम कैरियर यूज नहीं करेंगे. इट मीन्स दैट इज अ नॉन कोहेरेंट टाइप डिटेक्शन ऑफ पीएसके. सो अगर हम पीएसके के अंदर दोबारा से सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए जो कैरियर हमने ट्रांसमीटर साइड पे यूज कर रखे हैं वही कैरियर हम रिसीवर साइड पे यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन उसके यूज से क्या होता है आपका सर्किट हैवी हो जाता है ड्यू टू द इटसेल्फ जनरेशन of the carrier in that particular circuit. But in DPSK we cannot use carrier at the receiver side, so that's name is non-coherent type detection. Clear. To detect non-coherent detection of phase we use DPSK. So अगर इसके अंदर carrier use नहीं हुआ तो उसको carrier को synchronize भी नहीं करना पड़ेगा तो उसकी cause automatically क्या हो जाएगी आपकी reduce हो जाएगी. ठीक है. So this is a basic circuit for your DPSK. It is not possible to have non-coherent detection of PSK. Here, to detect non-coherent detection of phase, we use DPSK. It reduces cost of the circuit. So this is a building block of your DPSK transmitter, or you can say how you can done the DPSK modulation with the help of your modulator. You can say transmitter, and this is the building block of your DPSK transmitter. Here we use one XOR gate, which are having QK and QK minus one. It means current and previous bit both are bit are XOR with each other and it produces the result that is in the form of data bit, or you can say DK in the form 0110. Clear. So here the previous bit getting from your output. Clear. ठीक है. तो क्या होगा that is your I stand for your current input and TB will be produce your delayed output. So delayed output are XOR with your current input and it produces the result DK. So let's as per the function of XOR gate, you can say QK is if QK is 0 and QK minus 1 is 0. So in that case the DK will be 0. ठीक है. अगर नेक्स्ट केस में क्या हुआ क्योंकि अगर आपका 0 है और क्योंकि माइनस 1 क्या है आपका 1 है तो एज पर दी फंक्शन ऑफ योर एक्सोर गेट इट विल प्रोड्यूसेस 1 एट द output. So by the functioning of your XOR gate, you can produce the various bit at the output, various data bit at the output. Clear? Clear. But that data bit can be converted into polar form with the help of one block you should be used here. Here we mentioned dk is equal to qk plus of qk minus 1. Clear? Or you can say qk XOR with your qk minus 1 is equal to your dk. ठीक है. The data bit which we are getting after the result of decay you can given to a polar phenomena. It can convert your particular bit into plus minus ak. Clear. It means that should be generate a plus 1 and minus 1 as per the magnitude of the signal, and that signal if you use the modulation here you can say transmitter here. In that case you can modulate the particular input bit with your carrier. So after that you getting the result plus minus ak cos of omega ct.
So here we done the DPSK modulator, or you can say DPSK transmitter. Then how it is work as per the waveform, how you can getting the particular waveform with the help of your DPSK. So here we mention DPSK waveform. Here we mention if the next data bit is 1, then change polarity of output. If next data bit is 0, then do not change the polarity. Remember these things very carefully. If next data bit is 1, suppose our data bit is here DK, that is DK, you can say, and your output as per the carrier signal will change. Clear? So data bit, if the next data bit is 0, suppose that is 1, starting from 1 here. Clear? ठीक है, next data bit is 0. If 0, not change the polarity. आपने polarity को change नहीं किया, वे वैसे की वैसे रही यहाँ तक. आपने फर्स्ट बिट को तो वैसे दिखा दिया, ये 1 है तो यहाँ 1 हुई. नेक्स्ट बिट से आपने पोलरिटी चेक की, 1 से किस पे चेंज हो रही है, 0 पे. तो 0 पे आपने लिखा हुआ है आप इसकी पोलरिटी को चेंज नहीं करोगे, तो वो सेम पोलरिटी से आगे जाएगी. क्लियर? ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर कि अगर आपकी, यानी कि आपने जो लाइक डाटा बिट को प्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे डीके को, तो वो 0110 की फॉर्म में आ रही है. तो इस फंक्शन को फॉलो करते हुए, तो अगर तो आपकी नेक्स्ट डाटा बिट 0 है तो वो पोलरिटी वैसे की वैसे रहेगी. लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट डाटा बिट 1 है, क्या है, नेक्स्ट डाटा बिट 1 है, तो यू कैन चेंज द पोलरिटी इनटू योर नेगेटिव साइड. अगेन योर डाटा बिट इज अगेन 1, देन यू कैन अगेन द पोलरिटी change. Here we mention 1 to 0, and here we mention 0 to 1. For your that one or that one, change the polarity. Next data bit is 0, you cannot change the polarity. Here that should be follow the same. ठीक है. फिर next data bit is again 0, here we should follow the same polarity. Again the data bit is 1, here we also should follow the different polarity. ठीक है. It means change the polarity. So by the use of that phenomena, you can draw the particular waveform as per the case of your DPSK, or you can say differential phase shift king. It means in differential phase shift king, you can draw the waveform as per the previous bit, and that previous bit follow your current bit. Clear? So as per the analysis of your DPSK, you can draw the waveform of that particular type of DPSK. So here we draw the demodulator for DPSK, as in case of your DPSK. You can use, here we produce at the output at the transmitter side, that is plus minus AK cos of omega CT. So that particular output should be transmitted from your transmitter side. So after this you can getting at the receiver side same. Clear? Then that is a building block of your demodulator of DPSK, or you can say your receiver of your DPSK. So in that case, you can transmitted output receive by your particular type of demodulator, which you can use in your DPSK, and also you can use 1 bit delay, 1 bit delay data. Here we can use the same at the transmitter size. ठीक है. Here we can use the same at the receiver size. So आपको क्या मिलेगा, आप क्या करोगे, अगर आपका, यानी कि अब इसके अंदर फंक्शन कैसे हैंडल होगा कि वाई टी आपका फाइनल आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा, कि अब अगर यहाँ से तो आपका रिसीव्ड सिग्नल आ रहा है और यहाँ से आपका वही सिग्नल डिले के वर्जन में जा रहा है यहाँ से. क्लियर? ठीक है. तो अगर ये दोनों सिग्नल सेम पोलरिटी के हैं, तब इसके अंदर क्या होगा, और अगर ये दोनों सिग्नल डिफरेंट पोलरिटी के हैं, तब इसके अंदर क्या होगा. क्लियर? तो कैसे हम दोबारा से ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर डीमोडुलेटर. ठीक है. एज वी नो द फंक्शन ऑफ योर मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर, modulator modulate the particular type of transmitter, particular type of transmission, and receiver is demodulate that particular type of transmission. Clear? So after the result of demodulator, you can getting the original one same. Clear? You can getting the original data, we can say original bit data stream. ठीक है. देन आपने क्या किया, केस 1 के अंदर क्या डाला हुआ है कि अगर दोनों सेम पोलरिटी के हैं, अगर आपका इनपुट और डिलेड वर्जन दोनों सेम पोलरिटी के हैं, तो आपका अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट डाटा है वो क्या है, प्लस ए के कोस ऑफ ओमेगा सीटी, तो जो डिलेड वर्जन होगा अगर वो सेम पोलरिटी का है तो वो भी यही होगा. तो उसको कैसे लिखेंगे, दैट वाई ऑफ टी इज इक्वल टू that is product modulator. So here the both signal are multiply with each other. So if both are the same polarity, then you write the same ak cos of omega ct for your input and ak cos of omega ct for your delayed input. So both the inputs are product with each other as it is produced the function y of t.
क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, y ऑफ t मिल गया। अब इसके ऊपर आप मैथमेटिकल एनालिसिस लगाइए। जब इन दोनों को आप प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू क्या करोगे, मॉड्यूलेट करोगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी इनपुट और डिलेड वर्जन दोनों क्या हैं, इन फेस हैं, सेम पोलरिटी के हैं। तो उनमें कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं आया, दैट विल बी इक्वल टू योर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आया, ए के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा सी टी। देन अगर ए के स्क्वायर कोस ऑफ ओमेगा सी टी को अगर आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड एज ए के स्क्वायर बाय 2 1 प्लस कोस 2 ओमेगा सी टी। अब इसे ओपन कीजिए तो कैसे लिखा जाएगा, ए के स्क्वायर बाय 2, देन अगेन यू मल्टीप्लाई विद दैट फैक्टर, ए के स्क्वायर बाय 2 कोस ऑफ 2 ओमेगा सी टी। अब इस पूरे फंक्शन को आप एलपीएफ फिल्टर के थ्रू पास कीजिए। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, ओनली लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट को पास करेगा और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट को यहाँ से रिजेक्ट कर देगा। तो दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट विच आर without your cos or sine function, or that is called your high frequencies component. So that particular type of function should be removed with the help of your LPF filter. So only at the output you can getting AK square by 2. So that output will be same as per your original input. So how you can demodulate the carrier? In case 2, here we mention same. If the like input is AK cos of omega ct and the delayed version is out of phase with your input, so that's why the delayed version mention here minus AK cos of omega ct. ठीक है, if you multiply with both then you can getting the वही सेम आपको क्या मिलेगा, लेकिन माइनस साइन मिलेगा यहाँ पे, माइनस ए के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा सी टी। क्लियर। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला माइनस की फॉर्म में ओपन हो जाएगा, माइनस ए के स्क्वायर बाय 2 माइनस ए के स्क्वायर बाय 2 कोस ऑफ 2 ओमेगा सी टी। क्लियर। तो इसमें भी वही सेम, अगर आप उस कंपोनेंट को फिर दोबारा से लो पास फिल्टर के थ्रू पास करोगे तो यहाँ से आपके दैट शुड बी रिजेक्टेड योर हाई फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट, दैट ओनली पास योर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फॉर द सेम। क्लियर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक डाटा आपको प्लस की फॉर्म में मिला, एक डाटा आपको माइनस की फॉर्म में मिला। तो जो प्लस डाटा है दैट शुड बी रिप्रेजेंट योर बिट 1 एंड द माइनस डाटा विल बी रिप्रेजेंट योर बिट योर 0। सो योर इनपुट डाटा विल बी demodulate, or you can say input data is again back converted by your demodulator receiver, you can say DPSK. So that is a final block of your PSK. So you can say DPSK modulator and DPSK transmitter. So that topic is very much important for you. And here we come with your DEPSK. Here we mention the DPSK also explained with your transmitter and your receiver, but the DPSK transmitter is same as your PSK. I have not mentioned here. यानी कि जो DPSK का ट्रांसमीटर है वो आपका लाइक DEPSK का जो ट्रांसमीटर है, जो आपने ट्रांसमीटर DPSK के लिए बनाया है वही सेम काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म होगी डिफरेंशियल एनकोडर एनकोडेड पल्स शिफ्ट कीइंग। क्लियर। ठीक है। दैट इज अ डिफरेंशियल पल्स शिफ्ट कीइंग, और ये क्या है आपका, दैट इज डिफरेंशियल एनकोडेड पल्स शिफ्ट कीइंग। तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपली एक एनकोडर जो है एनकोडेड बिट का डिफरेंस है। तो लेकिन दैट एनकोडेड बिट डिफरेंस विल बी कवर इन योर रिसीवर साइड बिकॉज द ट्रांसमीटर एज सेम एज योर डीपीएसके। डीईपीएसके का ट्रांसमीटर डीपीएसके की तरह सेम होगा, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है ये वाला। ठीक है। ये दोनों सेम फंक्शन से काम करेंगे। नेक्स्ट वी कैन केम अंडर विद योर दैट इज, बट इसका रिसीवर जो है वो आपका क्या है, बीपीएसके की तरह है। बीपीएसके स्टैंड फॉर योर बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। सो हमने वो पहले स्टडी कर लिया है, चाहे आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो बीपीएसके का अगर आपने रिसीवर पढ़ा हो तो आपने कुछ ऐसा बनाया था। मैं इसका फंक्शन आपको बता देती हूँ कि इसने कैसे आपकी बिट को रिसीवर साइड पे दोबारा से डीमोडुलेट करके आपको ओरिजिनल डाटा बिट को प्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ ध्यान से देखिए। आपने जो भी जैसे जो डीपीएसके का जो ट्रांसमीटर था, ठीक है, दैट शुड बी सेम एज योर डीपीएसके ट्रांसमीटर। सो जो वहां से प्रोड्यूस हुआ, तो वहां से हमें क्या प्रोड्यूस हुआ है डीपीएसके के ट्रांसमीटर से, दैट इज प्लस माइनस ए के कोस ऑफ ओमेगा सी टी। सो हेयर वी मेंशन at the DPSK receiver block plus minus AK cos of omega CT, that your modulated output of your DPSK। वो ये रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उस मॉड्यूलेटेड आउटपुट को हम इनपुट की तरह देंगे यहाँ पे।
क्लियर, टू योर डीमोडुलेटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, ये आपकी इट्स सेल्फ आपकी कैरियर को जनरेट कर रहे हैं। क्लियर, मैंने ये बोला था कि जो आपका डीपीएसके है वो आपका नॉन कोहेरेंट टाइप है, लेकिन जो डीईपीएसके है वो आपका क्या है, कोहेरेंट टाइप है। कोहेरेंट मीन्स यहाँ पे आपने कैरियर को प्रोड्यूस करवाया है और वही कैरियर प्रोड्यूस होगी जो कि आपने ट्रांसमीटर साइड पे यूज की थी। क्लियर, तो दैट विल बी प्रोड्यूस योर कैरियर। बट डीपीएसके के रिसीवर में जो आपने पढ़ा है, रिसीवर में वहां कोई भी कैरियर ब्लॉक नहीं है कैरियर को प्रोड्यूस करने का, सो दैट वाई इट्स नेम इज नॉन कोहेरेंट टाइप डीपीएसके। बट इसके अंदर क्या है कि आपने उसी कैरियर को जनरेट करने के लिए व्हेन वी यूज अ स्केरला डिवाइस व्हिच कैन जनरेट योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी कन्वर्ट इनटू योर कांस्टेंट टर्म्स बाय द यूज ऑफ योर बैंड पास फिल्टर। अगेन योर फ्रीक्वेंसी इज डबल, so that frequency will be half by your frequency divider। ओके, मतलब कि मैं समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है डीपीएसके के अंदर आपका जो जो ट्रांसमीटर था, ठीक है, वो आपका लाइक डीपीएस के जो रिसीवर है वो नॉन कोहेरेंट टाइप था। क्यों, क्योंकि उसके रिसीवर के अंदर मैंने कोई भी रिसीवर का ब्लॉक नहीं बनाया है, सॉरी कैरियर का ब्लॉक नहीं बनाया है, लेकिन इसके अंदर मैंने कैरियर को जनरेट करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो वो जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो क्या करेंगे, आपकी इनपुट को, पहले जो भी इनपुट होगी उसको स्केरला के थ्रू नंबर ऑफ कंपोनेंट को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसमें कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट होंगे, उन कंपोनेंट्स को वो कांस्टेंट टर्म में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर फिल्टर। आफ्टर दिस द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई और यू कैन से डबल, एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी माइनस बाय यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपकी इन तीनों ब्लॉक्स के थ्रू आपकी कैरियर आएगी और यहाँ से आपकी इनपुट आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस ए के कोस ऑफ ओमेगा सीटी बाय योर डीपीएस के ट्रांसमीटर। इन दोनों को आप सिंक्रोनस डीमोलेटर की हेल्प से क्या करोगे, डीमोलेट करोगे। अगेन विच वी कैन केम अंडर विद बिट सिंक्रोनाइजेशन दैट प्रोवाइड योर bit synchronization between both input and your carrier signal. So after this you can getting the final output, you can produce your b of t as same as your here, which we can use at the transmitter size. One is your input and other input with the help of your delayed version. So here we also produce the same bt and one delayed output, both are XOR with each other. So the output if dt is 0, अगर आपको 0 प्रोड्यूस हो रहा है तो that will be bt t minus tb, it means both the bits are same। अगर दोनों बिट सेम है तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा, अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। तो आपने as per the DPS के receiver you can recover again your original signal at the output of your XOR gate। So that is a function of your DEPSK receiver। So again you came under with the advantage and drawbacks of your DEPSK। Advantage क्या है, uses coherent type of detection, same, because we can generate the carrier itself in the circuit, so that's why we use here coherent type of detection। So by the use of coherent type of detection in which your receiver should be complex in nature as per your DPSK receiver। क्लियर, डीपीएसके में कोई भी कैरियर को जनरेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सर्किट नहीं यूज किया, तो उसका जो रिसीवर होगा वो कम्प्लेक्स नहीं होगा रादर देन योर डीई पीएसके। और इस उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा थे, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी क्या होंगे आपके, कम होंगे बाय द यूज ऑफ बिट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर कैरियर एट द ट्रांसमीटर एंड योर रिसीवर। Again you can came under with your QAM। What do you mean by QAM? QAM stand for your quadrature amplitude modulation, that is a type of your analog and also converted into digital by the use of serial to parallel converters। ठीक है, तो QAM जो है वो सेम एज योर PSK है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है मुझे, क्वेश्चन आप नोट कीजिए कि QAM के अंदर विच वन इज बेटर, आइदर QAM और PSK, एंड किसके अंदर आपकी नॉइज इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पीएसके एक्सप्लेन किया था, तो उस पीएसके की वीडियो प्लस आप क्यूएम की वीडियो को कंपेयर करना और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना कि आपका पीएसके इज बेटर देन योर क्यूएम और इधर क्यूएम इज बेटर देन योर पीएसके एज पर दी नॉइज इम्यूनिटी। क्लियर, ठीक है। तो एक बार आप सपोज मान लेते हैं, अब इसके अंदर इसका नाम क्या है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको क्वाड्रेचर क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर दो कैरियर यूज किए हैं।
ठीक है, 2 कैरियर यूज होने के कारण ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप एक बार ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको एक बार रिमूव कर दीजिए। ओनली यू विल कम विद योर x1t इनपुट एंड x2t इनपुट। ठीक है, x1t input going to your product modulator, and here we use the carrier block which can produce a high frequency carrier by the use of a cos of omega ct। तो ये कैरियर प्लस योर इनपुट दोनों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू क्या हो गए हैं, मॉड्यूलेट हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन x1t a cos of omega ct, जो कि आपका क्या है, एक डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल, सॉरी, दैट इज योर x1t a cos of omega ct। क्लियर। अगेन उसी कैरियर को अगर आपने दूसरे सिग्नल को देना है, क्योंकि आप 2 कैरियर यूज कर रहे हैं, तो आपने सिंगल कैरियर के यूज से 2 कैरियर प्रोड्यूस किए और दूसरे सिग्नल के साथ क्या किया, उसको मॉड्यूलेट किया। तो बाय द यूज ऑफ 90 डिग्री फेज शिफ्ट, अगर आप इसके ऊपर 90 डिग्री फेज शिफ्ट लगाओगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर a sin of omega ct। क्लियर। So here we getting a cos of omega ct without 90 degree phase shift, and here we getting the minus, you can say, a sin of omega ct। अब x1 जब कैरियर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वन सिग्नल x1t a cos of omega ct। क्लियर। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, x2t a sin of omega ct। ठीक है, अब दोनों क्या हो रहे हैं, एडर के थ्रू ऐड हो रहे हैं और आपको फाइनल मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ x1t a cos of omega ct प्लस x2t a cos of omega a sin of omega ct। अब जो यहाँ तक ब्लॉक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज योर एनालॉग इन नेचर। ठीक है, बट वेन एवर योर input is digital, then how the block should be work, in that case your data is digital, the data is converted into your parallel form by the use of digital to analog कन्वर्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनालॉग इनपुट मिल जाएगी, उस एनालॉग इनपुट को आप फिर यहाँ से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दोगे फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड, सो दैट सिग्नल विल बी प्रेजेंट बाय आई एन क्यू सिग्नल। Clear, or you can say x1 and x2 t as per the variation of your various books। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डन कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक विद योर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड रिसीवर। ठीक है, तो जो आपको रिसीव सिग्नल मिला है वो आपको क्या मिला है, ध्यान से देखिए, दैट इज अ समीशन ऑफ योर टू सिग्नल। ठीक है, दैट इज x1t a cos of omega ct एंड x2t a sin of omega ct। इसको आप ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट कर देंगे। जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा तो वो सेम सिग्नल रिसीव करेगा। वो आपका सिग्नल क्या है, s of t, जिसको आपने क्या लिखा है अभी प्रीवियस स्लाइड में, x1t a cos of omega ct एंड x2t a sin of omega ct। तो वो सिग्नल आपका कैरियर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। ठीक है, अब इस सिग्नल्स को आप अंदर ले जाइए और पूरे एक्सप्रेशन को ओपन कीजिए। तो कैसे लिखा जाएगा, x1t a cos square omega ct प्लस x2t sin of omega ct इंटू में cos of omega ct। क्लियर। मैंने इस फंक्शन को ओनली सिंपली ओपन किया है, वही सेम सिग्नल मैंने यहाँ यूज किया। वो कैसे यूज किया है, जो भी रिसीव्ड सिग्नल आया वो s of t है। ठीक है, उसको आपने वही product modulator here, one product modulator here for the both of the signal, and one use your 90 degree phase shift। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका कैरियर जो है cos of omega ct जा रहा है विदाउट 90 डिग्री फेज शिफ्ट, और यहाँ पे विद 90 डिग्री फेज शिफ्ट जा रहा है। अब रिसीव सिग्नल क्या है, एस ऑफ टी की वैल्यू आपने क्या लिखी है, ये वाली। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो वही सिग्नल की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करवा दिया और इनटू में क्या कर दिया, cos of omega ct। again that is produce your y1 dash t, and same you can produce y2 dash with 90 degree phase shift। क्लियर है, तो मैं फर्स्ट केस लेके चल रही हूँ y1 t, वो आपका क्या आएगा, रिसीव्ड सिग्नल s of t मल्टीप्लाइड विद योर कैरियर सिग्नल cos of omega ct। तो जो रिसीव्ड सिग्नल है उसकी वैल्यू को मैंने ओपन किया और उसको cos of omega ct से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। क्लियर। अब इसको अंदर लेके जाइए, तो कैसे लिखोगे, x1t a cos of omega ct इंटू में cos of omega ct, वी कैन से cos स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, और इसमें दोनों डिफरेंट है, देन x2t a sin of omega ct इंटू में cos of omega ct। क्लियर। तो अब इसे सोल्व कीजिए। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, x1t a, इसको मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, और अगर आप इस फंक्शन को ओपन करोगे cos स्क्वायर ओमेगा सिटी को, उसको लिखोगे 1 प्लस cos 2 ओमेगा सिटी बाय 2। ठीक है, अगेन अगले वाले फंक्शन को आपने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, x2t a बाय 2, सेम, इट इज x2t a बाय 2 इंटू में साइन 2 ओमेगा सिटी लिखा जाएगा उस पूरी इक्वेशन को। तो जब लाइक लाइक 2, इसको आप क्या लिखोगे, इस वाले को
2 sin a cos ऑफ ओमेगा ct को आप लिखोगे sin ऑफ 2 ओमेगा ct। क्लियर? तो ये दोनों फंक्शन क्या हैं, आपके हाईएस्ट टर्म्स में आते हैं और ये फंक्शन किस में आता है। अब इन दोनों फंक्शन में इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों टर्म्स में ये टर्म्स कॉमन निकल जाएगी, इसको बाहर लिख दिया। जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आए हैं आपके, ठीक है, उसको आपने वैसे का वैसे मेंशन कर दिया। अब इसको क्या करोगे आप, जब आप इस पूरी इक्वेशन को लो पास फिल्टर के थ्रू पास करोगे एट y1t को, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो साइन और कोस वाले हाईएस्ट टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगे, ओनली आपको ओरिजिनल वन मिल जाएगा। तो वो क्या आएगा आपका x1t a बाय में 2। क्लियर? ठीक है, सेम अगर आप y2t सॉरी y1 डैश टी आपने प्रोड्यूस करवाया है, अब y2 डैश टी प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा x2t a बाय में 2। So we can produce the same signal, or you can say you can recover your signal as per your original one with the help of your receiver of your QAM. So here in last we can draw the constellation diagram for your 4QM. Why we mention here 4QM? Because in which we can use 2 bit per constellation. So here we mention one signal is I, other is Q. ठीक है, also you mention x1t here and x2t here। ठीक है, अगर x1t इधर है तो x2t इधर है, दोनों क्या हो जाएंगे आपके आउट ऑफ फेस हो जाएंगे। तो ये फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। तो अगर आप 2 बिट पर कंसोलेशन यूज कर रहे हैं तो 2 बिट के अकॉर्डिंग सिग्नल के लेवल क्या बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। क्लियर है? तो एक इसका यहाँ से जो इतना एम्पलीट्यूड होगा दैट इज कॉल्ड योर कॉन्स्टलेशन पॉइंट से सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी शो योर एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल एज पर दी कॉन्स्टलेशन पॉइंट। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ और ये पूरा क्या दिखा रहा है, फेस। इट मीन्स यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेस क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो एम्पलीट्यूड प्लस फेस दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड भी मिल रहा है सेंटर पॉइंट से एज पर दी कॉन्स्टलेशन पॉइंट, और ये सारे क्या मिल रहे हैं, फेस मिल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 4QAM। अब जो इसका कंसोलेशन डायग्राम है वो आपका पीएसके का भी यही होता है सेम। क्लियर? तो आप डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि आपका क्यूएम और पीएसके में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो एज पर दी कॉन्स्टलेशन डायग्राम, तो मैंने एक डायग्राम और मेंशन किया हुआ है दैट शोज योर 16 QAM। 16 because in each constellation here we mention only one point, so here we mention 4 points, so that dark one will be show your 4QM and the later 3 one add with each other। ठीक है, here also, ठीक है, every point with 4 constellation, so that is called your 16 QAM। क्लियर है? आपने 4 QAM को 16 QAM में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें भी क्या है, सेंटर पॉइंट से दैट इज आल्सो अ डिस्टेंस, here is also a distance, and here is also a distance, and here is also a distance, same as for here is also a distance, here is also a distance, here is also a distance, and here is also a distance। So again we can say that कि आपका जो 16 QM को है उसमें आपने लाइक लेवल्स को इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से आपके जो कॉन्स्टलेशन पॉइंट भी हैं वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो आपका क्या होगा, जो ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट है, ठीक है, अगर पिछला डायग्राम देखें तो इसमें एम्पलीट्यूड दूर है आपका एज पर दी बाउंड्री, ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्स्टलेशन पॉइंट के इंक्रीज होने के कारण आपके पॉइंट्स नजदीक नजदीक आ रहे हैं। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी आपकी, मोर लाइक लेस अच्छी हो जाएगी एज कम्पेयर टू ईयर 4QM, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टलेशन पॉइंट काफी दूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टलेशन पॉइंट क्या आ रहे हैं, काफी नजदीक आ रहे हैं। तो अगर 16QM से आ गया 32QM में कन्वर्ट करोगे तो कॉन्स्टलेशन पॉइंट और भी नजदीक आ जाएंगे। तो यू कैन इजिली रिकवर योर ओरिजिनल one with the help of your 16QM। So that is a major difference between your 4QM and 16QM as per the constellation diagram। तो ये जो सेंटर से ये वाले स्क्वायर वाले पॉइंट है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं, here also same। और जो दूर वाले पॉइंट है उसका क्या ये शो कर रहे हैं, लाइक मैग्नीट्यूड सॉरी फेस शो कर रहे हैं एज पर द वेरियस पॉइंट। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बोथ एम्पलीट्यूड एंड योर फेस। सो टुडे आई रिव्यू माय वीडियो दैट इज डीपीएस के मैंने डीपीएस का ट्रांसमीटर बताया आपको, उसकी वेवफॉर्म बताई, उसका रिसीवर बताया विद फुल मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डीपीएस के मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस टॉपिक्स में से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक पक्का आएगा।
नेक्स्ट आपने क्यूएम को कवर किया, जो कि आपका एएसके और पीएसके का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो अगर आपकी क्यूएम को डिजिटल इनपुट के साथ डील करना पड़े तो ब्लॉक्स में कुछ ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे इनपुट पे, तो मैंने उसका एक ट्रांसमीटर बनाया और एक रिसीवर बनाया। तो मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नोटिस किया है कि आपको क्यूएम के ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंड वन क्वेश्चन इज आल्सो कवर ऑन योर डीपीएस के। सो आप इस और एक जो क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के अंदर कि कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या होता है। कॉन्स्टलेशन डायग्राम हमें पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन इन क्यूएम के अंदर हमें एम्पलीट्यूड और फेज की लोकेशन बताता है एट पर्टिकुलर पॉइंट से। सो दैट विल बी कॉल्ड योर कॉन्स्टलेशन डायग्राम। क्लियर? ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।